तो स्वागत है आपका युवा अनप्लग्ड में एपिसोड 4 में, जिसमें हमारे साथ हैं राहुल गुप्ता, एमडी ऑफ कंफर्ट कास्टर इनोवेशन चेयर वाया दिल्ली। हेलो सर। थैंक यू आयुष, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मेरा आपसे पहला सवाल यही है, व्हाट इज़ योर स्टोरी? आप इतने सारे डेजिग्नेशंस पे हैं, तो आप यहाँ तक कैसे आए हैं? Okay. व्हाट वाज योर स्टोरी? So first of all, thank you Ayush for having me here. थैंक यू सो मच। It's a pleasure. My story begins from graduating from my college MDI Gurgaon. From there I got an opportunity to pursue a second degree in Masters in International Business in an institution called ESCP in Paris. After that, when I came back, I thought मुझे कुछ एक ऐसा जॉब कर लेना चाहिए जो मुझे मे बी फ्यूचर में हेल्प करे इन माई बिजनेस. माई फादर हैड अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन हार्डवेयर्स एंड इंडस्ट्रियल व्हील्स, एंड आई थॉट जस्ट टू गेट अ feel of the Indian market, I should do a job here in India as well, because I had already worked for some time in France. Then I went back to my college, and I got an opportunity to become trade finance head of a government bank. So in a government bank, obviously there is less of hand holding, and on the job learning ही mostly रहती है आपकी. There I learned the intricacies of export and import. And after I did my first transaction in imports, I resigned from the job and joined my business fully in 2010. Business में आने के बाद, obviously the first couple of years went in just learning of my business, the tricks of the trade as you may call it. And at that time our business was a traditional Indian business, depending on dealers. We had more than 250 dealers and distributors across India. And coming from MDI and ESCP, obviously I had great goals in my mind to make it a conglomerate and big business. But as I went through the process, by the second year I realized that there are few structural problems in the business model. The first was the problem of credit, which is in India prevalent. हम डीलर बढ़ा रहे थे, लेकिन साथ साथ हमारा क्रेडिट भी बढ़ रहा था, and that was creating a stress in the business. The credit cycle. Exactly. Because a standard credit cycle in India is around 90 days, 100 days, like that. And so I thought maybe we should cut down the dealers and maybe more focus more on corporates. Then for a year we started focusing more on corporates and supplying our products to them. But then again there were problems with inconsistent payment terms. There was always a pressure of pricing, because India is a price driven market, right? So competition is high here, and in many industries like hardware or industrial mobility, it's a red ocean. And so I was just reflecting that how can we grow fast in such kind of a market, and it looks very difficult. So I follow Chanakya's policy very closely. And Chanakya very famously said that choose your battleground carefully. So coming from this thought, I came across a research report of my industry, and it was a very expensive report. I remember somewhere close to around 6 lakh. And I obviously my father won't have given me that money for that research report. But fortunately, being an alumni of MDI, I requested my professors, and they gave me a free access to that report. It was an American report. So that report very clearly mentioned that the demand in our market, around 60% of the demand came from the US market. Okay, 20% around came from Europe, 15% from Asia, and only 3% demand came from India. So that was a light bulb moment for me, because I suddenly realized that we are playing in that 3% zone in India, and whatever best can we do, we can only exploit 3% of the world. So we have to change our battleground where we want to do business, and so that started with the closest country, and the easiest country we found was Gulf, because we went to Dubai. And because there it's easy to sell because of ethnicity. The language is similar, and ease of business is better, and obviously it was not a cakewalk there also. When I first approached a few dealers in Dubai, they completely they didn't want to talk to me. They didn't want to have meetings with me, and because people like me may have been coming to them for many years. So it's very tough on you. मैं वो trip बिना किसी sales या बिना किसी meeting के I have to come back. But there's what resilience of a salesperson comes, and the support of a family. Then my father told me that it takes time to reap benefits with such a strategy of exports, and you have to keep trying. I went again. कुछ 3 से 6 महीने बाद मैं दोबारा गया वहाँ पे, and I just asked, I follow a contrarian thinking in life.
So rather than how I went like a buyer there in the market, and I asked the dealers that, for example, if I have to buy this product in huge quantity, who should I go to? And उसने बोला कि सर अगर आपको 1 लाख पीस चाहिए तो आपको इसी शॉप ओनर से लेना पड़ेगा. So suddenly it registered in my mind that he is the big name in the market. Then I reconfirmed that with another shop owner or another shop, another store in the market, and then I reached the right business. So I thought that because everybody respects this brand and he has the money and to buy my products, so it's better to pitch him that. Second time also he told me that we are getting the products from China, they are very cheap, and India is very expensive, we don't want your products. I said okay, that's okay, I just came to say you hello and have some tea with you, because जब आप जाते हो ऐसी जगह पे तो आपको पानी और चाय के लिए कोई मना नहीं करता, ठीक है, वो सब अलाउ कर देते हैं. So but that's where opportunity, where we are putting our foot in the door, and we are having a conversation with them. Then in second meeting also I couldn't get any success. Then I went for the third time. जब आप थर्ड टाइम जाते हो तो जो अननोन पर्सन भी है ना, उसको लगता है कि ही इज कमिंग अगेन एंड अगेन, ही इज नॉकिंग द डोर अगेन एंड अगेन, एंड नाउ ही फील्स कंपेल्ड टू लिसन टू यू एटलीस्ट. So when for the third time I went, I was fortunate that he was not very busy that time, and so he allowed me in his shop, and it was a big showroom kind of a space, and he told me that are you carrying some samples? We were just having a normal conversation, and मैंने उसको अपने सैम्पल्स दिखाए, एंड ही लाइक इट. उसने बोला कि नहीं, ये सब प्रोडक्ट्स तो यहाँ चलते ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है प्रोडक्ट क्या. मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आप बताइए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए. दैट्स हाउ अ सेल्स पर्सन हैज़ टू गो, एंड सो ही गाइडेड मी कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है. एंड दैट टाइम ही प्लेस्ड that was the first order of a very very small value. I remember it was under 5 lakh rupees, in Indian value terms, but that was my first trial order. So किस टाइम था ये? It was around I think in 2014. Oh, nice. 10 years back around. Yes. Okay, so that was the start of exports. And there you can see that the seeds were sown for the journey ahead. Then obviously I went for the fourth time. They liked the product, they liked the quality, they gave us the feedback, and we started getting bigger order from that side and more customers from that territory. जब आपने ज्वाइन किया था तो बिकॉज यू वाज यंग, आप पहले मतलब यंग होंगे उस टाइम पे, तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी है बिकॉज वी फैमिली बिजनेस में जब ज्वाइन करते हैं तो बिकॉज माई फादर इज इनटू फैमिली बिजनेस, तो जब उनका एक्सपीरियंस ये था कि जो उनके फादर्स थे उन्होंने बड़ा सीरियसली लिया था पहले, तो आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस हुई थी? I was fortunate in this sphere. My father always supported me. Yes, sir. जब तक मैं था फ्रांस में, he told me that जितना पढ़ सकते हो आप पढ़ो, और जितना आपको घूमना है आप घूम सकते हो, so that जब बिजनेस में आ जाओगे ना, then ये सब करने का शायद मौका इनिशियली ना मिले. It is grind in the initial years. You have to learn the product, learn manufacturing, learn quality, learn relationship building with suppliers and with customers. So उन्होंने हमेशा फ्री हैंड दिया मुझे, and he trusted my abilities. बट ऑब्वियसली उनका कहीं ना कहीं एक बिलीव था कि इफ ही हैज कम इनटू बिजनेस तो शायद हमारा बिजनेस का मॉडल चेंज होगा. बट फर्स्ट 2 years, एज आई सेड, कि इट वाज ऑल लर्निंग on the shop floor, on the ground, meeting the dealers. So but slowly and steadily, जैसे मैंने आपको बताया कि we pivoted our business model towards exports. The confidence came from the Gulf market. Then we went to countries like Africa, other Gulf nations, then to Europe and to US. Today, after 10 years, I am happy to share that US is our biggest market right now. We are exporting to more than 25 countries in 6 continents, and we are amongst the top 5 industry players in the world, not in India. In the world. Yeah. So I give such an example that starting from such a small level to this scale right now, it can be achieved by any company if we have done it. Yes. Yes. Only you have to have a belief that any Indian company can master exports. Yes. Because I generally meet industry leaders from northern India, some from southern India, in CII meetings. There they always tell me that can India compete with China? But so I just asked them a question, that price is not the only factor where we are competing. Yes. It is about the total value what we are delivering to the customer. When we see, India is a price driven market. Yes, sir. But when we talk about US and Europe, the first thing is quality, then comes the price, and the total value as a package what you are giving to them, and that encompasses many things: your relationship building, your quality, your price, your packaging, your delivery, all those aspects. It's a complete package.
But there's a belief that it's tough for India, and I think that belief has kept us very low share of exports in the worldwide market. So because ये problem है, तो as sales is the most important factor in your business, manufacturing business or any industry, तो what is the definition of sales according to you? See, sales सर इसे ना थोड़ा हिंदी में लेंगे. ओके. बिकॉज मैं एक तरीके से ये कहूँगा कि जैसे मैं सेल्स के बारे में कुछ नहीं जानता, तो आप मुझे स्टार्टिंग से बताओ. श्योर. सो सेल्स एक काफ़ी बड़ा अम्ब्रेला है, राइट. हम लोग उसको बहुत ही 2-3 चीज़ों से मेजर कर लेते हैं, लाइक कोल्ड कॉलिंग और फील्ड सेल्स. बट दैट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द सेल्स. इट इज़ देयर इज अ मॉडल कॉल्ड सेल्स फनल, AIDA model, which starts from awareness, interest, desire and action, and then later it goes to customer loyalty and retention, right? तो एक पूरी funnel है. Sales is basically meeting customers and converting leads to revenue. तो sales को हम लोगों ने क्या है कि define बहुत narrowly कर दिया है. Right? अगर हम देखें sales को, तो sales has a part to play in the company's growth strategy. क्योंकि sales हो रही है फ्रंट लाइन पे, we are getting feedback from the customer, and that is how manufacturing is improving its products. उस फीडबैक के बेसिस पे ही प्रोडक्ट्स को आप पिवट कर रहे हो, रीडिजाइन कर रहे हो. आपको पता है कि द मैन्युफैक्चरिंग इज अलाइन टू व्हाट द मार्केट वांट्स. आप उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हो. सो इन अ वे आप देखोगे प्रोडक्शन इज लिंक टू सेल्स, राइट. देन इनोवेशन इज लिंक टू सेल्स, क्योंकि आप प्रोडक्ट्स को कैसे इनोवेट करोगे? थ्रू कस्टमर फीडबैक. सो वो फीडबैक अगर आप खुद से आइडियाज लेके आ रहे हो एंड यू आर नॉट एक्सेसिंग कि मार्केट की प्रॉब्लम क्या है, तो आप वो प्रोडक्ट बनाओगे जो किसी को नहीं चाहिए. The best way to innovate is to first learn the problems of the customer and then innovate in a backward direction. वो सारे insights sales से आते हैं. Third is relationship. आज आपकी कंपनी का जो ब्रांड है वो कैसे बनता है? By offering excellent services to the customers time again. जो repetitive sales आ रही हैं. So it is the sales team जो आपके कस्टमर से on a almost weekly basis or monthly basis or in our cases quarterly basis, हम international sales करते हैं. So we meet customers quarterly in US and Europe. तो वहां पर आप उनसे रेगुलरली मिल रहे हो. दे नो समबडी हु इज कमिंग टू मी, दे नो दैट दिस ब्रांड और दिस कंपनी इज लिस्टिंग टू मी. दे अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, दे अंडरस्टैंड माई पेन. इन अ वे आप अपना स्लोली एंड स्टडली ब्रांड बिल्ड कर रहे हो उनके मार्केट में, राइट. और ब्रांड जब आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो ही स्ट्रांग सेल्स आप अचीव करते हो. तो दिस इज ऑल इंटरलिंक्ड, राइट. तो हम लोग क्या बहुत उसको नैरोली डिफाइन कर देते हैं कि वो एक कोल्ड कॉलिंग है और फील्ड सेल्स है. फॉर एग्जाम्पल, I've recently hired 3 students from your college, James Vasant Kunj, right? तो उनको अभी हमारे पास 6 months से ज़्यादा हो गए हैं. And in these 6 months, they have not done a single cold call or they have not done a single field sales job. Seriously, sir? अभी तक उन्होंने कोई भी cold call नहीं की है. Whatever people they have called is research data. हम मार्केट रिसर्च करते हैं. Yes, sir. We know what whoever buyers what they want. How can we tailor our offerings अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, राइट. जो हमारी पिच उनको जाती है दैट इज वेरी वेरी टेलर्ड, वेरी कस्टमाइज्ड. जब उनको फर्स्ट कॉल हम करते हैं, वी नो व्हाट दे वांट. कोई कोल्ड कॉल हमारी तरफ से कभी आज तक गया नहीं है. और ये एक लाइव एग्जांपल है कि जो अभी इनिशियली जिनको 6 months हुए हैं, 6-7 months, आई डोंट थिंक दे विल एवर डू कोल्ड कॉल. हमने कभी किया ही नहीं है वो, एंड फील्ड सेल्स की बात की जाए तो व्हाट इज फील्ड सेल्स? इफ आई एम गोइंग टू यूएस टू मीट माई कस्टमर्स, दैट इज एक्चुअली फील्ड सेल्स, right? But it is looked from a very very narrow I would say lens. Field sales is actually relationship building. आप जब कस्टमर से मिलने जा रहे हो तो आप एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, अपने ब्रांड को आप बना रहे हो, राइट. तो इसको एक नैरो पर्सपेक्टिव से ना देख के हमें एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रेटजी से देखना होगा कि इस रोल के बिना कंपनी ग्रो कर ही नहीं सकती. इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक रोल सेल्स. यस सर. टू ऐड ऑन टू दिस, बिकॉज हमारी ना, मैं लास्ट ईयर में हूँ बिकॉज वी आर परस्यूइंग BBA, तो अब हमारे साथ रिसेंटली अब कंपनीज आनी शुरू हो गई, राइट. तो हमारे दिमाग में भी यही चीज़ रहती है कि बिकॉज सेल्स है तो थोड़ा एक नोशन है दिमाग में कि शायद वही कोल्ड कॉलिंग जैसा आपने बोला कि ये सब होता है. तो इस बिलीफ को तोड़ा कैसे जाए? ओके, सी ये बिलीफ कहाँ से आता है? वी हैव टू रियलाइज व्हाट यंग ग्रेजुएट्स वांट. दे वांट मे बी ग्लैमर or prestige or higher salary. Nothing wrong everybody wants that, right? But तो marketing और finance इस तरह के रोल से वो terms attached है, right? Glamour attached है,
इट्स गुड टू टेल समवन इन योर फैमिली कि आप एक बिजनेस एनालिस्ट हो, आप एक फाइनेंस कंट्रोलर हो, राइट. बट अगर आप कहोगे मैं सेल्स मैनेजर हूँ तो वो सोचेगा पता नहीं क्या करता है, राइट. तो बिकॉज दे वो बिलीफ सेट है यहाँ पे मार्केट में. तो हमें वो बिलीफ तोड़ने हैं. मैं कहूँगा कि अगर आप सेल्स नहीं कर रहे ना तो यू आर मिसिंग अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. रे क्रॉक. रे क्रॉक इज द फाउंडर ऑफ मैकडॉनल्ड्स. ही वाज अ मिक्सर ग्राइंडर सेलर. वो शेक्स बनाने के लिए मिक्सर ग्राइंडर सेल करते थे रेस्टोरेंट्स को. एंड ही बाय चांस वो एक मैकडॉनल्ड का स्टोर उसने विजिट किया. ही लाइक द कॉन्सेप्ट. एंड व्हाट ही डिड वाज स्लोली एंड स्टडीली ही एक्वायर्ड द होल ऑफ चेन, राइट. क्योंकि फाउंडर्स कोई और थे, ओरिजिनल फाउंडर्स. एंड उसने आज क्या चेन बना दी है एंड व्हाट अ ब्रांड. उस जैसा ब्रांड अभी तक और कोई बन नहीं पाया है ऑन बेस्ड ऑन सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस. एंड बिकॉज वो सेल्स में था, सो ही हैड एन एंटरप्रेन्योर नेचर कि वो उसको कर पाया. सेकेंडली, सेल्स में हम उसको बहुत नैरोली देख रहे हैं. व्हेन वी हायर्ड पीपल फ्रॉम योर कॉलेज, आई कैटेगोरिकली टोल्ड देम फॉर द फर्स्ट ऑन द फर्स्ट डे कि जो आप आज सैलरी ले रहे हो, आने वाले टाइम पे जो आपका कमीशन बनेगा सेल्स से, दैट उसके आगे सैलरी कुछ भी नहीं है. इफ यू सी इन यूएस, वहां पर जो सेल्स प्रोफेशनल्स हैं, they are earning millions of dollars every year just based on commission. The foremost example is Grant Cardone, very famous sales expert. He has a multi-million-dollar sales training agency now. उनका करियर ऐसे शुरू हुआ था, and it is all based on sales. तो secondly, sales is the role जो आपको सबसे जल्दी ग्रोथ देता है in terms of leadership in the management, because results direct measurable है. अगर मैं फाइनेंस में हूँ, मैं प्रोडक्शन में हूँ, मैं ऑपरेशंस में हूँ, मैं मैनेजमेंट में हूँ, तो मेरे रिजल्ट्स इतनी जल्दी मेजर नहीं हो पाएंगे. बट सेल्स बिकॉज जल्दी कन्वर्ट होती है, जो भी बिजनेस आएगा रेवेन्यू में ऐड होगा, राइट. इट इज़ वेरी वेरी इजी टू मेजर सेल्स. तो सबसे जल्दी ग्रोथ जो है ना सेल्स के लोगों की होती है. तो हमें एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है जो दूसरे रोल्स को नहीं मिलती. हमें लीडरशिप रोल में सबसे जल्दी रोल मिल रहा है, हमें फेम मिल रहा है. वी आर गेटिंग टू ट्रैवल. इन आवर केस, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो इंटरनेशनल सेल्स में द टीम वी हैव, दे ट्रैवल प्लेसेस, दे ट्रैवल टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द इन इंडिया एंड अक्रॉस आउटसाइड इंडिया. सो उनको ये अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं. हम आज बिजनेस लीडर्स का या एंटरप्रेन्योर्स का पॉडकास्ट सुनते हैं, उनके बुक्स पढ़ते हैं. बट अगर आप देखोगे तो हर बिजनेस अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी है. इन सेल्स के लोगों को मौका मिल रहा है ऐसे बिजनेस लीडर से डायरेक्ट बात करने का. अगर आप देखोगे तो दे आर लर्निंग ऑलमोस्ट एवरी डे, दे आर गेटिंग इंस्पायर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे, राइट. ये अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है? ऑफिस में बैठे लोगों को, फाइनेंस के लोगों को, राइट. लास्टली, रिसेंटली लास्ट वीक व्हाट हैपेंड, मेरे एक रिलेटिव हैं जो कि बहुत ही सीनियर है फाइनेंस रोल में. And company, he was working in the US, but company got bankrupt. ठीक है, he lost his job and he had worked in that company for last 15 years. उन्होंने मुझे अपना रेज्यूमे भेजा and he was very stressed. उन्होंने बोला कि अब मुझे ऐसी जॉब कहाँ मिलेगी. Then I realized the structural problem. Had he been in sales, I think उनको एक क्वेश्चन मुझसे पूछना नहीं पड़ता. Yes. Because sales का अगर आप लीड कर रहे हो ना, you can go into any kind of job. You can sell anything. आप इतना very well understand करते हो बिजनेस को कि आप कंस्ट्रेंड नहीं हो अपनी स्किल्स से. योर होराइजन इज मच मच मोर ब्रॉडेंड. सो मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग सेल्स को ये समझ रहे हैं कि वो कोल्ड कॉलिंग है, फील्ड सेल्स है, या इसकी अपॉर्चुनिटी नहीं ले रहे हैं, वो वेल्थ बिल्डिंग के लिए जो है ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. इफ यू रियली वांट टू बिल्ड वेल्थ इन योर करियर, दिस इज द जॉब टू कम इन. सो मेरा तो बिलीफ टूट गया सीरियसली. मैं मार्केटिंग, बिकॉज आई लाइक मार्केटिंग एंड ऑल. मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है मेरा कि in theories we say sales is a part of marketing, but actually when we go to some businesses and corporates, there's a separate department, they work parallelly, sales and marketing. So why? My question is why? Okay, see, sales and marketing are the two different sides of a coin. दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. मैं बहुत सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ. मार्केटिंग इज एनी एक्टिविटी you do to create awareness and generate interest about your product. आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने ब्रांड की तरफ, अपने प्रोडक्ट की तरफ. आप प्रोडक्ट की फीचर्स और बेनिफिट्स बता रहे हो, राइट. एंड उनको आप अवेयर कर रहे हो अबाउट योर प्रोडक्ट. तो एनी एक्टिविटी जो इंक्लूड करती है ये सारी चीज़ें, दैट इज मार्केटिंग. ठीक है. अगर हम सेल्स की बात करें तो मार्केटिंग का गोल क्या है? टू जनरेट लीड्स. ठीक है, एक्टिविटीज मैंने आपको बता दिया, बट गोल इज टू जनरेट लीड्स. सेल्स का काम स्टार्ट होता है लीड से. सेल्स इज एनीथिंग दैट कन्वर्ट्स दिस लीड्स टू रेवेन्यू, to close the deals. So their job is to make relationship, negotiation, persuasion, ठीक है, और revenue को लाना. That is sales. So marketing से शुरू होता है, जो मैंने आपको funnel बताया था, awareness, interest. So awareness का काम करती है marketing and conversion का काम करती है sales.
अगर मैं सिंपल, बहुत ही सिंपल अपनी लाइफ से एग्जांपल दूं, यू नो, फॉर एग्जांपल जैसे हमारी मदर आर कुकिंग फूड्स इन आवर हाउसेज, राइट? तो व्हेन दे आर कुकिंग द फूड, जो उसका अरोमा आ रहा है या वो गार्निश जैसे कर रहे हैं फूड को, यू नो, दैट इज मार्केटिंग. ओके. कि वी आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू द फूड, बट व्हेन द फूड इज बीइंग सर्व्ड टू यू एंड यू आर रिलिशिंग दैट फूड, दैट इज सेल्स. Nice. Good example, sir. So my next question would be, in future I would like to start my own business. तो सर मैंने ना नितिन कामत the founder of Zerodha, they say कि first starting any business you have to be a salesperson. Is it true? As I said कि sales is the engine that is taking the business forward. आप कोई और स्किल आपके पास ना भी हो, अगर सेल्स की स्किल नहीं है तो बिजनेस का चलना मुश्किल है. ये वो व्हील्स हैं जिसपे कि पूरा बिजनेस चल रहा है. तो व्हाट ही हैज सेड इज परफेक्टली करेक्ट. दिस यू हैव टू हैव दिस स्किल. नाइस. सो सर बिकॉज अब हम एआई में आ गए हैं और हर जगह सुनते हैं हम चैट जीपीटी एंड ऑल, तो व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ सेल्स इन एआई वर्ल्ड? आई ऑब्जर्व दैट अभी थोड़ा एआई का फियर ज्यादा है. यस. मोस्टली यंगस्टर्स में या जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं, व्हाट दे आर थिंकिंग इसकी शायद रिप्लेस ना कर दे, राइट? हमारी स्किल्स कॉपी ना हो जाए, ऑल दोस थिंग्स. बट हमें ये देखना होगा कि AI is actually a tool which has to be used by humans. I think it will really empower humans. वो रिप्लेस तो नहीं करेगा बट कॉम्प्लीमेंट जरूर करेगा. मैं आपको एक अमेजिंग एग्जांपल देता हूँ अपने ऑफिस से. So we have a person in our office since last 15 years. When he joined, he is I think just 10th पास है वो. Okay. कोई बहुत अच्छी इंग्लिश भी उसको आती नहीं है, और he started with administrative jobs. फिर वो सेल्स के रोल्स भी थोड़े बहुत करने लगा. But now we are an export focused organization. We have customers in Europe who speak different languages. वो कैसे AI यूज करता है and how he is empowered, आप बिलीव नहीं करोगे. So हम Gmail यूज करते हैं एज अ ईमेल टूल, यू नो, इन मतलब हमारा कंपनी का जो डोमेन है वो Gmail पे सेटअप है, राइट? उसमें हमने गूगल AI असिस्टेंट इंटीग्रेट कर दिया. वी आर गेटिंग ईमेल्स फ्रॉम स्पेन इन स्पेनिश, इटालियन फ्रॉम इटली, यू नो, देन पोर्चुगीज फ्रॉम साउथ अमेरिकन कंट्रीज. वो बंदा जिसको इंग्लिश भी ठीक से नहीं आती, he reads those emails using Google AI Assistant. फिर वो उसने हिंदी में मैसेज बनाता है, वो उसको Google AI Assistant से कन्वर्ट करता है इन दैट सेम लैंग्वेज, और वो मेल करता है. एंड ही इज कन्वर्टिंग लीड्स, ही इज गेटिंग ऑर्डर्स. क्या हम बिलीव कर सकते थे 10 साल पहले कि जो जिस बंदे ने, जिसको इंग्लिश भी ठीक से नहीं आती और उसने कोई खास काम किया भी नहीं है लाइफ में, दैट वाज हिज फर्स्ट जॉब, आज वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को उन्हीं की लैंग्वेज में आंसर भी कर रहा है, उनकी मेल्स को समझ भी रहा है और ऑर्डर्स भी क्रिएट कर रहा है. सो दिस शोज कि AI आपको कैसे एम्पावर कर सकता है, यू नो. दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल. एक्चुअली वो फायदा ले रहे हैं. एग्जैक्टली. तो AI का जो पर्पस है ना, वो हमें क्या है, AI को जो अपने रिपीटेटिव जॉब्स हैं, जो लोली जॉब्स हैं, वी हैव टू डेलीगेट दो जॉब्स टू AI. वी हैव टू कंसिडर कि AI हमारे एक ऐसा असिस्टेंट है जो हमें एम्पावर कर रहा है. जो स्किल्स हमारे पे नहीं थी वो हमें AI हेल्प कर रहा है. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. जनरली हमें एक्सपोर्ट कस्टमर्स को डेमोज देने पड़ते हैं, वीडियो डेमोज ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, बिकॉज मीटिंग्स तो होती ही हैं बट कई बार प्रोडक्ट डेमोज देने पड़ते हैं. एंड कंट्रीज लाइक जर्मनी, स्पेन, इटली, ये लोग प्रेफर करते हैं कि अगर हमारी लैंग्वेज में हो तो ईजी रहेगा. फ्रांस स्पेसिफिकली. नाउ देयर आर AI टूल्स कि हमारे लोग उनको हिंदी इंग्लिश में रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी सेल्स पिचेस को. दे जस्ट फीड दैट वीडियो टू द टूल और वो किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जा रही है. मतलब जिसको हिंदी भी इंग्लिश भी नहीं आती, वो आज स्पेनिश में, इटालियन में, फ्रेंच में हमारे कस्टमर्स को वीडियोस भेज रहा है. इट ऑल हैपन थ्रू AI टूल्स. इसके बिना तो हो ही नहीं पाता. जी, राइट. वो प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं उनके लिए. सो आवर प्रेजेंटेशंस आर कस्टमाइज्ड. जो कस्टमर का इश्यूज है उसके लिए प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं. तो ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन बनाना भी एक आर्ट है. आपको वो भी सीखना आना चाहिए. लेकिन देयर आर टूल्स लाइक gamma.app जहां पर आप 2 मिनट में आपकी प्रेजेंटेशन बन जा रही है. ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशंस जो आपकी शायद कैनवा पे भी नहीं बन पाएंगे, ऐसी भी प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं. और वो लोग बना रहे हैं हु आर नॉट एट ऑल ट्रेन्ड इन दैट. what they are doing is they are just watching maybe an half hour video of that, how to use that tool. वो उस प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर रहे हैं, कस्टमर्स को भेज रहे हैं. दे आर क्रिएटिंग अ वाव इफेक्ट इन देयर माइंड्स कि आपने क्या भेजा है, यू नो, इन देयर लैंग्वेज. सो सच इज द इम्पैक्ट नॉर्मल पीपल आर एबल टू क्रिएट यूजिंग दीज AI टूल्स. नाइस. सर आपने ना पहले एक चीज़ बोली थी कि आप YI की मीटिंग्स में आते हो और वहाँ पे सबसे मतलब यही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि वी कैन कम्पीट विद चाइना एंड ऑल. तो सर मेरा यही है कि क्वेश्चन कि बिकॉज इंडिया की GDP MSME पे ज़्यादा फोकस रहती है, तो हाउ, जैसे आपने अपना बिजनेस ग्लोबली स्केल कर पाए, तो कैन दे डू दैट? द फर्स्ट थिंग, इफ दे रियली वांट टू डू दैट, इज देयर बिलीफ सिस्टम. यस.
ठीक है, पहले हमको मानना होगा कि हम कर सकते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ अभी. एक ट्रेंड आप इंडिया में देखोगे, whenever we try to compare good things in India, we compare it with foreign locations. For example, गुड़गांव में साइबर हब, right? तो जब हम साइबर हब आते हैं तो हम उसकी तारीफ कैसे करते हैं? हम कहते हैं कि वो ऐसा लगता है जैसे इंडिया में है ही नहीं. हाँ. यही बोलते हैं ना. हाँ. हम गोल्फर्स रोड पे जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हम इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कंपेयर इंडिया बाहर से, कि वो ऐसा लगता है जैसे इंडिया में है ही नहीं. तो कीपिंग द सेम गोल इन माइंड, हमने गोल रखा है एज अ टीम कि हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को ऐसा बनाएंगे कि लोग ये बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट इंडिया का है ही नहीं. कस्टमर विल टेल अस. उसका हमने गोल कुछ 4-5 साल पहले बनाया था. तो अभी कोविड के नेक्स्ट ईयर वी डिड अ ट्रेड शो इन बैंगलोर. तो वहां पर हमारे कॉम्पिटिटर का भी बूथ था. हमारे कॉम्पिटिटर हमारे बूथ पे आए और मैं उस टाइम बूथ पे नहीं था. उन्होंने मेरी टीम को बोला कि ये प्रोडक्ट किसके हैं जो आपने सारा डिस्प्ले किए हुए. तो मेरी टीम तो रोज ही देखती है प्रोडक्ट. उन्होंने बोला कि सर ये प्रोडक्ट सब इंडिया के हैं, हमारे प्रोडक्ट हैं. वो कहते हैं नहीं, आपने चाइना से इंपोर्ट किए हैं, मैं नहीं मान सकता कि ये प्रोडक्ट आपके हैं. राइट. ही वाज वेरी वेरी कंफ्यूज्ड कि इतने गुड लुकिंग प्रोडक्ट्स, इतनी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स इंडिया के कैसे हो सकते हैं. एंड तो मैं उस दिन था नहीं, मैं सेकंड डे उनके पास गया जस्ट टू मीट हिम. तो उन्होंने मुझे फर्स्ट थिंग ही सेड टू मी कि सर आप इतना इंपोर्ट क्यों करते हो चाइना से. मैंने कहा यार मुझे नहीं लगता कि मैंने लास्ट 10 साल में इंपोर्ट किया है. हाउ डू यू से दैट? कहते हैं जो प्रोडक्ट्स आपके बूथ पे रखे हुए हैं. मैंने कहा वो सब इंडियन मेड है, हमारी फैक्ट्री में बने हैं वो. एंड ही वॉज वेरी वेरी सरप्राइज. ही सेड कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा. आई जस्ट प्लेनली टोल्ड हिम कि आपको विश्वास दिला के तो मेरे को फायदा नहीं है. राइट, बिकॉज यू आर नॉट माई कस्टमर, यू आर माई कॉम्पिटिटर. बट हमें what happened, second question he asked me that Rahul, do you think that Indian companies like us can export? And I have heard that you are exporting, but somewhere I think he didn't believe in us. उसको लग रहा था शायद हम झूठ बोल रहे हैं या हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, and we have just built around a story. And he truly believed कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ था उसका. When I came back from the exhibition, we had a team meeting, and I told my team, please give yourself a pat on the back. बिकॉज हमने गोल तो ये रखा था कि कस्टमर बोलेगा ये बात, बट ये बात कॉम्पिटिटर ने बोल दी, हु नोज द प्रोडक्ट मच मोर, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट बना रहा है ना. तो जिस कॉम्पिटिटर ने ये कह दिया कि प्रोडक्ट इंडिया का नहीं है, दैट मीन्स कि हमने शायद अपने गोल को ओवर अचीव कर लिया है. सेकेंडली, कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. सेकेंडली, ही ट्रूली बिलीव्ड कि इंडियन कंपनीज एक्सपोर्ट नहीं कर सकती. सो मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है चक दे मूवी से, जो शाहरुख खान ने अपनी टीम को बोला था कि कोई भी मैच माइंड में पहले जीता जाता है, फिर बाद में ग्राउंड में. जी सर. सो आई टोल्ड माई टीम कि आई थिंक ये जो एक्सपोर्ट वाला मैच है ना, ये शायद हार चुका है. गुड फॉर अस, राइट. यस. बट अनफॉर्चुनेटली, हम ये मैं फनिंग वे में कहता रहा हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो सिचुएशन है ये सारे MSMEs के साथ ऐसा ही है. जो मैं आपको पहले एग्जांपल दे रहा था, इट वाज नॉट अबाउट YI बट अदर इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस आई एम पार्ट ऑफ. तो वहाँ पे जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो MSMEs का यही बिलीफ होता है कि हम वर्ल्ड स्टेज पे कैसे कम्पीट कर पाएंगे, हमारी क्वालिटी वो कैसे बन पाएगी. वो चैलेंजेस रहते हैं, एंड इट इज ऑल ड्यू टू बिलीफ सिस्टम एंड लैक ऑफ नॉलेज. अगर उसको हम स्ट्रेंथन करते हैं, एंड समटाइम्स दे ब्लेम गवर्नमेंट ऑल्सो कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए किया ही क्या है. आई थिंक गवर्नमेंट जो कर रही है ना, इनफ कर रही है. आई थिंक लास्ट 10 years में अगर हम इवोल्यूशन देखें तो गवर्नमेंट इज डूइंग मच बेटर जो पहले से होता आ रहा था. आज हम जाते हैं, इफ आई एम गोइंग टू US एंड जर्मनी, एवरीबडी नोज मोदी. उन्होंने ऐसा ब्रांड बना दिया है कि इतना अच्छा ब्रांड है आज इंडिया का कि हमें 10% ज्यादा प्राइस देने को तैयार है कंपनीज. सीरियस? राइट, एग्जैक्टली. 10% चाइना से ज्यादा प्राइस हमें इंडिया को देने को तैयार है, जस्ट बेस्ड ऑन द ट्रस्ट एंड ब्रांड मिस्टर मोदी हैज बिल्ट. तो आई थिंक वो उन्होंने जो ये डिलीवर किया है, दिस इज इनफ. तो वी शुड बी थैंकफुल ऑफ हिम कि वो आज ऐसी सिचुएशन हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं कि बिकॉज इन कन्वर्जन ऑफ सेल्स द फर्स्ट थिंग इज क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट. वो ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी वाला काम उन्होंने कर दिया है, बाकी काम हम लोगों को करना है. सो वी शुड स्टॉप कंप्लेनिंग, एंड वी शुड गो अहेड. और पुराने बिलीफ सिस्टम को छोड़ के हमें मानना पड़ेगा कि हम भी कर सकते हैं, क्योंकि देयर आर कंपनीज. मैंने आपको अपनी कंपनी का एग्जांपल दिया कि 10 साल पहले हमारे 0 एक्सपोर्ट्स था. आज हम 25 कंट्रीज ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं. जो हमारा मैक्सिमम एक्सपोर्ट आता है वो फॉर्च्यून 20 कंपनीज से आता है. ब्रांड्स लाइक होम डिपो, इट्स अ $500 billion कंपनी. सो अगर हम कर सकते तो कोई और क्यों नहीं कर सकता. जी सर. तो जैसे आपने भी बोलता कि परेशानी इन फेलियर्स, एंड आपकी जो पहली 2 पिचेस थी वो भी फेल्ड थी. एग्जैक्टली. तो सर फेलियर्स को एक पॉजिटिव माइंडसेट से कैसे देख सकते हैं? ये एक थोड़ा आई थिंक स्पिरिचुअल क्वेश्चन. सर मैं स्पिरिचुअल पूछ रहा हूँ, बट मैं ये बोलूँगा कि सेल्स में ना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप सेल्स या इंटरनेशनल सेल्स करने जाओगे देयर विल बी अ लॉट ऑफ रिजेक्शन. तो वहाँ पर काम आएगा आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, टू
सो सेल्स में इमोशनल इंटेलिजेंस आपका दो जगह काम आएगा. फर्स्ट इज टू एम्पैथाइज विद द कस्टमर, कि आप उनके पेन पॉइंट को समझ पा रहे हो, आप उनके रिक्वायरमेंट को समझ पा रहे हो. एंड सेकेंडली टू कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन द फेस ऑफ फेलियर और रिजेक्शंस, बिकॉज वो आता ही रहेगा. जो एक स्किल सेल्स में सबसे ज़्यादा चाहिए, दैट इज परसिवरेंस. एक माना जाता है कि कोई भी आपकी सेल कन्वर्ट नहीं होगी अंटिल 8 टचेस. एक ही फॉर्मूला एक्सपर्ट्स बताते हैं. 8 टचेस मे बी इन एनी फॉर्म, मे बी आइदर थ्रू कॉल और व्हाट्सएप और ईमेल और फिजिकल मीटिंग, एटलीस्ट 8 टचेस. आप बिलीव नहीं करोगे, ये तो एक बहुत ही बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ. जब हम B2B सेल्स की बात करते हैं, जो मेरा डोमेन है, तो दिस आर ऑल कॉम्प्लेक्स सेल्स, बिकॉज ये टेक्निकल सेल्स है. B2B sales, when you are starting with US companies, it takes you anywhere from 6 months to 2 years to convert that sales. आज जो हमारे बिगेस्ट कस्टमर्स हैं, 2 साल लगे उनको बनने में. और अगर हमने 6 महीने बाद सोच लिया होता कि हम तो इनको 50 बार वी हैव टच देम 50 टाइम्स, इनसे मिल चुके हैं, मीटिंग कर चुके हैं, ऑफर्स दे चुके हैं, तो ये कस्टमर तो कभी कन्वर्ट नहीं होगा, तो आई थिंक हमने तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज कर चुके होते. सो हम कभी भी सेल को लॉस नहीं मानते अनलेस अंटिल हमें कस्टमर ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि वी डोंट वांट टू बाय. इवन देन वी टेल देम कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं लेना चाह रहे, वी विल कम बैक अगेन आफ्टर 3-4 months, मे बी आपका मूड चेंज हो जाएगा. सी सेल्स में होता क्या है ना कि यू ऑलवेज हैव टू बी दैट बेंच प्लेयर, कि अगर कल को धोनी इंजर्ड हो गया तो पंत वहां बैठा होना चाहिए. रियलाइज. और अगर उसी मैच में आपने सेंचुरी मार दी तो फिर आप टीम में आ गए, राइट. बट आपको वो सेंचुरी कब लगेगी? जब आप बिना मौका मिले भी डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट. वो सेंचुरी तभी लग पाएगी. लेकिन आपको पता है कि ठीक है भाई, धोनी खेल रहा है, मुझे क्या प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, मैं तो 10 मैच से बेंच पे बैठा हूँ, तो आपकी वो सेंचुरी कभी नहीं लगेगी. और वो सेंचुरी अगर नहीं लगती तो शायद वो आपको मौका ना मिले, एंड पीपल विल लेबल यू एज अ फेलियर, राइट. तो यही फर्क है. सर एक लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. आप इतनी बड़ी कंपनी के ओनर्स हैं, तो व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू द बडिंग एंड एंटरप्रेन्योर्स कि क्या करें? जो मैं इसको थोड़ा ट्विस्ट करूंगा कि सर जो एडवाइस कहीं ना मिलती. आई थिंक ऐसी कोई ओरिजिनल एडवाइस तो शायद मेरे पास भी नहीं होगी, बट अपने एक्सपीरियंस से मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहले तो जो भी रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं या बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपने होराइजन को ना लिमिट ना करें अपने बिलीफ से. यू हैव टू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट दैट एनीथिंग इज अचीवेबल. आप चाहे आप जॉब में जाओ, बीट सेल्स को नैरोली ना देखें. ये ना समझे कि इंटरनेशनल बिजनेस इंडिया से नहीं किया जा सकता, ये हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है. रिसोर्सेज अपने आप क्रिएट हो जाएंगे. कभी भी रिसोर्सेज को दिमाग में रख के ना स्टेप्स नहीं ले सकते हम. हमें एक गोल को ध्यान में रखते हुए वो रिसोर्सेज अपने आप कहीं ना कहीं से क्रिएट हो जाते हैं. बट वी हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि वी कैन डू इट, वी हैव द रिसोर्सेज. सिर्फ गैप रहता है नॉलेज का. सो आप अपने नॉलेज बेस को स्ट्रेंथन करो, ठीक है, अपने होराइजन को ब्रॉडन करो, एंड अपॉर्चुनिटीज अपने आप आएंगे आपके पास. बट कीप लर्निंग, आई वुड से. That's the motto, that's the mantra. Thank you so much, sir. Thank you so much.